So now we will start with dihybrid cross after the formation of the gamete. As we know how the gametes formed, we have completely studied this. Now we will start with dihybrid cross, and this is very important aspect of the genetics. From this cross, Mendel had concluded law of independent assortment. What is the dihybrid cross? Wahi, the cross, the breeding experiment which involve the study of two characters at a time. Okay, मैं लिख देता हूं the breeding experiment which deals with the study of two characters at a time. ओके, यहां पे भी मैं वही एक्सपेरिमेंट लूंगा जो मेंडल ने स्टडी किया था. सो द क्रॉस इज हियर. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसका. कौन सा? Mendel has studied the shape of sheet, study two characters. Shape of sheet. Shape of sheet have the two traits: round, controlled by R gene, and round seed, and wrinkled seed. This trait is controlled by the small r. This is one character. And color of cotyledons. Color of cotyledons. Sorry. Having two traits. One is yellow cotyledons controlled by the yellow cotyledons controlled by Y allele or Y gene, and green cotyledons controlled by small y gene. Okay, he took homozygous parent for both the characters. He took homozygous parents, or he took parents homozygous for both the characters. He took parents homozygous for both characters. That is, one parent is with round seed, yellow cotyledons, having the genotype RR, YY, and other parent with wrinkled seed and green cotyledons with the genotype small r, small y. बेटा ये आदत डालिए
कि जब आप स्मॉल लेटर लिख रहे हैं तो आप स्मॉल बोल लें भी, जिससे आपको क्रॉस करते हुए आपने तो मन में ही बोलना है, आपने किसी को पढ़ाना थोड़ी है ना, तो आप मन में ही बोले व्हाट इट इज आर आर वाई वाई एंड इट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो समझ के आप इतना लिखेंगे। उसके बाद मैं क्रॉस को करना शुरू करूंगा, तो बिकॉज द ब्लैक बोर्ड इज सो स्मॉल, सो मुझे क्रॉस अब ड्राइव करना है सारे का सारा, तो मैं ये वाला एस्पेक्ट जो है, तो आप समझ गए मैंडल ने 2 कैरेक्टर लिए, वन इज शेप ऑफ सीड एंड अदर इज कलर ऑफ कॉटिलिडन। इसमें राउंड और रिंकल था, इसमें येलो और ग्रीन कॉटिलिडन 2 ट्रेड्स थी। ये आर और ये स्मॉल आर जिनके द्वारा कंट्रोल था, ये वाई और स्मॉल आर। जो दोनों कैरेक्टर लिए वो होमोजाइगस थे और कैरेक्टर थे राउंड सीड एंड येलो कॉटिलिडन एंड रिंकल सीड एंड ग्रीन कॉटिलिडन। इज इट क्लियर? द जीनोटाइप इज आर आर वाई वाई and small r small y. Let us see how the cross is there, how to make a cross. इसके बाद आप लिखेंगे, आप तो नोट डाउन करते रहें। See here now the cross, लिखा है डायगोनल क्रॉस। तो सबसे पहले पेरेंट जनरेशन होगा बेटा। क्रॉस को बनाने का तरीका मैंने कल भी डिस्कस किया, वैसे ही रखना है आपने। वी हैव द पेरेंट जनरेशन। इन पेरेंट जनरेशन फर्स्ट इज फिनोटाइप, देन जीनोटाइप। क्लियर है बेटा? फिनोटाइप हियर इट इज, suppose if it is male parent, ये वैसे फर्क नहीं पड़ता है कि which one parent is male or female। हम इस पेरेंट को suppose it is male parent and one is female parent, so it has the genotype of round seeds, phenotype of round seed and yellow cotyledons with genotype of, it is genotype of RR YY, and the second parent is, it is crossed with second parent which is female parent, and this is having wrinkled seed and green cotyledons। ओके बेटा, खत्म कर लीजिए चैट। कितने देना? See, it is having genotype of small r, small y, small y। अब तो गैमीट्स बनाना आते हैं बच्चों आपको, डबल एरो लगाएंगे जब भी आप गैमीट्स बनाएंगे। तो गैमीट्स विल बी वेरी सिंपल। क्या होंगे बेटा? आप गैमीट्स बनाने का तरीका आपने पेपर में इनको बार बार प्रैक्टिस करना। इट इज आर आर वाई वाई, मैं आपके लिए लिख रहा हूं। क्या करना है, जल्दी से फर्स्ट पेयर को सेपरेट करके फोर्थ लगा दीजिए, सेकंड पेयर को उसके ऊपर लिख दीजिए और इट बिकेम आर वाई। सभी के सभी एक जैसे होंगे। सो द गैमीट्स आर ऑफ वन काइंड, दिस इज आर वाई, and here the gametes are small r, small y, and there is no chance of probability. During fertilization, these two will unite with each other and form the seeds, and these seeds have the embryo which germinate to form the F1 generation। जैसे मैंने बेटो कल आपके लिए बात बोली थी बेटा, so there is single option in the F1 generation. There is what will be the phenotype of this F1 generation? See here, जो F1 जनरेशन है उसका जो फिनोटाइप है, जो मेंडल ने देखा, the
Mendel found that the phenotype is round seed and green cotyledons. क्या आ गया बेटा इसमें? उन्होंने देखा कि F1 में आ गया, ऐसे लिखूंगा ज्यादा बेटर होगा, राउंड सीट एंड ग्रीन कॉटिलिडन्स. जो F1 अपीयर हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन अपीयर हुआ, उसके अंदर ये आ गया. क्लियर है? एंड द पॉसिबल जीनोटाइप इज, यस बोलिए, इट इज R स्मॉल r y स्मॉल y. क्लियर है बेटा? क्लियर है इतना? फिर मेंडल ने क्या किया? मेंडल है सेल्फ पॉलिनेट देम. क्या किया गया? सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 की गई. सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 किया गया. क्लियर है? इतना पता लग गया. मैं अब आपको बताता हूं, ये मुझे रफ करना पड़ेगा. सी व्हाट डज मीन द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1. इट मीन्स F1 they were crossed with the F1. सेल्फ पॉलिनेशन. पेरेंट्स में क्रॉस पॉलिनेशन था, मैं बार बार बोल रहा हूं, और यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन किया गया. इट मीन्स R स्मॉल r y स्मॉल y, ये पेरेंट का जीनोटाइप, इसका मेल का और फीमेल का भी R स्मॉल r एंड y स्मॉल y. इज इट? अब नेचुरली क्या होगा बेटा? गैमीट्स बनेंगे. गैमीट्स बनेंगे बेटा. मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी गैमीट्स बनाएंगे आप डबल एरो लगाएंगे क्रॉस लिखने के लिए. जब गैमीट्स बनेंगे तो कौन सा मेथड लगाना हमने? आपने प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं छोड़नी अभी कि सर बता देंगे. मैं आपके लिए देखो कर रहा हूं दोबारा समझाने के लिए. जल्दी से क्या करेंगे? R स्मॉल r y स्मॉल y ऐसे लिखा. ये तो मैं कलर पेन चौक से आपको समझा रहा हूं, आपने नहीं कलर से बनाने, आपने एक ही पेन से बनाने हैं. R स्मॉल r y स्मॉल y. आप फॉर्क के लिए इनको पहले सेपरेट कीजिए, फिर फॉर्क लगा दीजिए, y स्मॉल y स्मॉल y. जल्दी से R स्मॉल y स्मॉल r y एंड स्मॉल y. ये 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे. आपने भी गैमीट्स फास्ट ही बनाने हैं, किसमें आपको स्लो नहीं होना है. अगर क्रॉस आपने करनी है देन मैं यहां पे बनाता हूं. गैमीट्स बनेंगे RY. One gamete is this. Other one is, 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे. 1 2 3 4. 4 इसी में बनेंगे. 1 2 3 और 4. ये 4 ऑप्शंस आते हैं. क्या है बेटा? RY या R और स्मॉल y या स्मॉल r y या स्मॉल r स्मॉल y. इज इट? इसमें भी ऐसा ही होगा बेटे. RY R स्मॉल y स्मॉल r y एंड स्मॉल r स्मॉल y. इज इट क्लियर? अब देखो 4 पॉसिबिलिटी यहां है, 4 यहां है. हो सकता है ये RY किससे मिले? इससे मिले या इससे मिले या इससे मिले या इससे मिले. हर एक गैमीट के पास every gamete have 4 possibilities of combination with the other parents or other partners gamete. So there is total possibilities 4 multiplied by 4 16. एक के लिए 4 है तो 4 के लिए कितनी होंगी? 16 होंगी. 16 possibilities are there. So we have to make an Punnett square. चेकर बोर्ड जिसे बोलते हैं, Punnett square बोलते हैं. Punnett is the scientist
उन्होंने दिया था। इन पॉसिबिलिटीज को जैसा आपने चेस बोर्ड देखा हुआ ना बेटा, चेस बोर्ड देखा हुआ है, वैसे हम बनाएंगे यहां पे उन पॉसिबिलिटीज के लिए। स्क्वेयर्स हमने बनाने हैं जैसे चेकर बोर्ड में होते हैं। हाउ मेनी? 16। 16 के लिए हमें करना क्या है? 1 2 इक्वल इक्वल से बन जाए। और गैमीट्स के लिए एक लाइन लगानी पड़ेगी आपको। पहले आप गैमीट्स के लिए लाइन लगा लें। अब ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है इसको आप 4 में डिवाइड करें। सो 1 2 3 एंड 4 वर्टिकली भी गैमीट के अलावा 4 और भी ज्यादा अच्छे से हो सकता है, इसमें स्पेस है मेरे पास। 4 लाइन लगा लिया बेटा। अब 1 2 एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा आप शेप के अनुसार देख रहे हो कि रेक्टेंगुलर बन रहा है, अदरवाइज इसी स्क्वेयर परनेट स्क्वेयर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? परनेट स्क्वेयर। परनेट स्क्वेयर इज नथिंग, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये ग्राफ की तरह ग्राफ बन रहा है देखो। इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टू शो द वेरियस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमीट्स पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर जनरेशन। किसी भी जनरेशन में जो गैमीट्स है उनके क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनको बताता है। और इसमें रूल है। रूल क्या है? दैट मेल शुड बी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फीमेल शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। आपको इसका भी एक टिप्स बताता हूं, एक टिप बताता हूं कैसे इसको याद रखना है। यू विल सी द सिंबल ऑफ मेल, इट इज लाइक दिस। मेल का सिंबल जो एरो है वो ऊपर की तरफ, साइड की तरफ है, ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ अपनी डिमार्केशन करता है। तो जो मेल गैमीट्स होंगे वे हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखे जाएंगे और फीमेल हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो लोअर साइड पे वो फीमेल गैमीट लिखे जाते हैं। ये पर्नेट स्क्वेयर का रूल है जो मैंने आपको बताया। तो दिस इज मेल टुवर्ड दिस एंड फीमेल टुवर्ड दिस। गैमीट्स गैमीट्स एक ही है, एक ही तरह के, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज द फर्स्ट गैमीट इज RY, second is male is R small y, then it is small r। शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे, मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। क्योंकि बेटा अगर आपको क्रॉस बनाना आ गया तो आपको जो इसकी रेशियोज है वो ऐसे ही याद हो जाएंगे। वो देखें आप ध्यान से देखिएगा। इट इज RY, इट इज R स्मॉल y, देन आप भी बोलते रहे साथ साथ में, ये बहुत जरूरी है आपके लिए बेटा। स्मॉल RY जितना आप बोलेंगे उतना अच्छा है, आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। स्मॉल r स्मॉल y आप सीख देंगे जल्दी से। यहां पे बेटा बोले बिल्कुल सही, RY देन R small y, then small ry, then small r small y। बेटा मैं आपको पूरे का पूरा पर्नेट स्क्वेयर भी पढ़ना सिखाऊंगा। अब हमने करना क्या है? आपके पास तो पेज है, अब मेरे हाथ इतने बड़े बड़े नहीं है कि मैं ऐसे कर पाऊं पूरे इसमें, पर हमें करना क्या था? फिंगर्स एक थंब यहां लगाना है। जब मैंने इसको ट्रीट किया तो मुझे पता है इसके पास ऑप्शन है कि इन चारों से मिल सकता है। तो सबसे पहले इसको लूंगा, यहां थंब और फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके करता चलूंगा। मैंने थंब यहां लगा लिया। अब क्या ऑप्शन होंगी बेटा? देखें आप क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। इट विल बी, बोलिए बोलिए बोलिए, R यस, Y है ना, R Y। इट शुड बी है R सॉरी, ये क्रॉस आप बनाना सीख लीजिएगा। R Y देन स्मॉल y। इस क्रॉस में कहीं गलती ना आप करें,
नहीं तो पूरी पूरी रेशियोज गलत हो जाती है। हियर इट इज आर, यहां देखें आप ऐसे फिंगर रखा है, आर स्मॉलर, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। वाई वाई, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आपकी प्रोसेस गलत। इट इज यहां से आर और यहां से स्मॉलर, then y small y। पहले आपने क्रॉस बना लेनी, फिर मैं अब इसकी ट्रेंड एनालिसिस आपको सिखाऊंगा। कोई बात नहीं, अब हो गया। अब देखिए बेटा, यहां आ गया तुम, तो आपका थंब यहां होगा। देन इट शुड बी डू फास्ट नाउ। सॉरी, आपने बेस लाइन पे लिखना है आर वाई स्मॉल वाई, देन इट इज आर स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, यहां इट इज आर स्मॉल आर, देन y और यहां से स्मॉल y। ओके, देन हियर इट इज r and it is here small r, then small y and small y। क्लियर है बेटा? इतना प्रोसेस कैसे करनी, बहुत इजी है। अब आप यहां आएंगे, क्या देखेंगे बेटा? इट इज आर, देन स्मॉल आर, देन 5y, देन आर स्मॉल आर y स्मॉल y। आप देखते रहे और बोलते रहे साथ साथ में मेरी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हियर इट इज, मैंने थंब यहां रखा और यहां फिंगर, स्मॉल आर, देन वाई। ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं मैं, इतनी तरह की ऑफस्प्रिंग्स हो सकती हैं इस F2 जनरेशन में। दिस इज F2 जनरेशन। नाउ जब गैमीट्स मिलेंगे F1 के तो क्या बनाएंगे? F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन है। ओके, अब यहां देखिए, इट इज स्मॉल आर, देन y and small y from here। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब हम क्रॉस के लास्ट लाइन में, अब हम इस पनेट स्क्वायर के क्रॉस के लास्ट लाइन में चलेंगे। तो वी विल सी, मैंने अपना थंब कहां रख दिया? यहां पे बेटा, और फिंगर्स यहां पे। नाउ यू विल सी वी आर हैविंग आर, सॉरी ऐसे करेंगे, देखिए आप बेस लाइन पे लिखे जिससे हमें ऊपर जगह चाहिए। यहां पे, यहां मुझे जगह चाहिए, मैंने, आप देखिए मैंने, मुझे जगह चाहिए यहां आर, फिर स्मॉल आर एंड वाई एंड स्मॉल वाई and small y। Is it clear? अब यहां, फिर यहां it became, the combination is, the possible combination of the genes or genotype is, the possible genotype is R, then small r, then small y। मैं अलग अलग कलर चॉक से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको विजिबिलिटी में दिक्कत ना आए और कॉम्बिनेशन भी आप समझें। नाउ दिस टू दिस, इट इज स्मॉल आर एंड y small y बेटा। ओके, एंड द लास्ट पॉसिबल जीनोटाइप इज, क्या होगा? इट इज स्मॉल आर स्मॉल y। और आप एक और बात ध्यान में रखें, केवल इसी स्क्वायर के अंदर ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पाया है। पूरी की पूरी क्रॉस में, पूरे के पूरे पनेट स्क्वायर में जो पॉसिबिलिटीज है, उनमें केवल एक ही
ऐसा जीनोटाइप होगा जिसमें ऑल द 4 एलील्स और जीन्स आर डोमिनेंट, एंड एक ही ऐसा होगा जिसमें चारों के चारों रिसेसिव होंगे। तो ये आपके सामने मैंने पर्नेट स्क्वायर जो पॉसिबल जीनोटाइप्स थे वे तैयार कर दिए। इज इट क्लियर? अब बच्चों देखें अब करना क्या है, हमें अब इनके फिनोटाइप्स ढूंढने हैं कि सबसे पहले तो हम जीनोटाइप तो है इनकी, अब अपने रेशोज भी देखने हैं कि इनकी क्या रेशोज होंगी, और दूसरा ये कि जो फिनोटाइप है वो कौन कौन से पॉसिबल फिनोटाइप है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा क्या होगा, R and R, it stand for round seed, YY stand for yellow cotyledon। तो मैं लिखूंगा यहां पे राउंड सीड येलो कॉटिलीडन। अभी भी मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं बेटा कॉटिलीडन में, उसकी भी जरूरत है। मैंने इसको फुल फॉर्म नहीं लिखा, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कि इनका क्या मतलब होगा। RSYC, what does it mean? It means round seed and yellow cotyledons. How many phenotypes are possible in this cross? ये phenotypes हैं। तो first phenotype is round seed yellow cotyledon, आपको यहां पे मिल रहा है, हमें इसी क्रॉस से सारा पता चलेगा बेटा। Now it is round seed क्योंकि RR है, Y is capital, Y is dominant, so the cotyledon is again yellow cotyledons। इसमें भी आप देखें राउंड सीट और वाई वाई है तो येलो कॉटिलीडन। यहां पे देखिए बेटा R स्मॉल आर Y स्मॉल वाई, क्योंकि एक एक डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट है वही अपने आप का एक्सप्रेस करेगा, इसलिए जो ट्रेट आएगा वो आएगा राउंड सीड येलो कॉटिलीडन। इज इट क्लियर? यहां पे देखिए जो फिफ्थ पॉसिबल आपका जीनोटाइप था उसका क्या फिनोटाइप होगा, आर आर वाई स्मॉल वाई। आर आर दोनों डोमिनेंट है, राउंड सीड होगा, वाई क्योंकि डोमिनेंट है और एक स्मॉल वाई है तो वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं करने देगा स्मॉल वाई को, जो कैपिटल वाई है जीन, इसलिए जो ट्रेट आएगा वो येलो कॉटिलीडन आएगा। सो इट इज अगेन राउंड सीड येलो कॉटिलीडन। ओके, हियर यहां देखें आप, यहां पे क्या है बेटा, आर आर इट स्टैंड फॉर राउंड सीड, but small y both are recessive allele are here, so recessive trait of the color of cotyledon will appear, color of cotyledon will, the recessive trait of the color of cotyledon will appear here, and it is green cotyledon. So round seed and it is green cotyledon. Is it clear? यहां पे वो सिमिलर है, राउंड सीड येलो कॉटिलीडन। यहां पे क्योंकि एक डोमिनेंट है इसलिए ये राउंड सीड होंगे, पर क्योंकि दोनों ही रिसेसिव एलील वाई स्मॉल वाई है इसलिए यहां पे ग्रीन कॉटिलीडन्स होंगे। तो हमारे पास अभी तक दो फिनोटाइप आए, पहला था RSYC और दूसरा है RSGC। RSGC, what does it mean? इसका मतलब RS stands for round seed and GC stands for green cotyledons। बेटा क्लियर है? क्लियर है ना? अब आप देखिए हम क्रॉस करते चलेंगे, हमें सारे के सारे फिनोटाइप मिलते चलेंगे। इट इज हियर R small r y y, it is again round seed yellow cotyledon। R small r y small y क्योंकि एक डोमिनेंट है, राउंड सीड येलो cotyledon is here। Is it clear बेटा? यहां पे देखिए स्मॉल r पहली बार हुआ ऐसा अभी तक इस पूरी क्रॉस में, स्मॉल r y y। तो अब क्या होगा बेटा, स्मॉल r मीन रिंकल्ड सीड, शेप ऑफ सीड की दोनों ही रिसेसिव एलील है, तो जो रिसेसिव सीड जो आपका ट्रेट है वो क्या है, रिंकल सीड और येलो
कॉटिलीडॉन। तो मैं लिख रहा हूं रिंकल सीड को, इट इज विथ wrinkled seed, okay, and wrinkled seed and yellow cotyledons, okay. Then see here again, smaller stands for wrinkled seed and small y for yellow cotyledons. तो आपके पास अब तीसरा ट्रेट आ चुका है, वो क्या है? इट इज WS एंड YC। तीसरा फिनोटाइप है, पहला फिनोटाइप था राउंड सीड येलो कॉटिलीडन, तीसरा है रिंकल सीड येलो कॉटिलीडन्स। इट स्टैंड्स फॉर WS फॉर रिंकल सीड्स एंड येलो कॉटिलीडन्स। हम देख रहे हैं जो रैंडम कॉटिलीडन, जो रैंडम मूवमेंट हुई है जीन्स की, वो यहां पे अब आपको विजिबल हो रही है, क्योंकि पेरेंट में तो राउंड सीड येलो कॉटिलीडन और जो अर्लियर पेरेंट हमने लिए थे हमने राउंड सीड येलो कॉटिलीडन और रिंकल सीड और ग्रीन कॉटिलीडन जो ट्रेट था वही था। अब दो नए ट्रेट आए हैं। अब क्या देखते हैं, जो पेरेंटल ट्रेट है वो बचा है कि नहीं बचा है। अब हम फोर्थ लाइन में देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज है। अब देखें यहां पे R स्मॉल r y स्मॉल y, इट इज एक कैपिटल दोनों का है तो राउंड सीड येलो कॉटिलीडन बेटा। यहां पे R स्मॉल r, इट स्टैंड फॉर राउंड सीड स्मॉल y, इट इज राउंड सीड एंड ग्रीन कॉटिलीडन्स। ये पहले भी था ट्रेट आया हुआ, कोई नया ट्रेट अभी तक नहीं है। स्मॉल r अगेन, इट इज रिंकल सीड स्मॉल y, इट इज येलो कॉटिलीडन। ये भी कोई अभी तक नया ट्रेट नहीं है क्योंकि ये पहले था। ये तीनों ही ट्रेट आपको यहां दिख रहे हैं। जो फोर्थ ट्रेट आप देखेंगे वो है रिंकल सीड ग्रीन कॉटिलीडन्स, WSGC। ये फोर्थ आपके पास बेटा एक और फिनोटाइप आता है और वो है WSGC, जिसे हमने लिखा, और वो क्या है? It stands for wrinkled seed, okay, and green cotyledons. Wrinkled seed and green cotyledons. So we have four phenotypes. Four phenotypes are there. ये है राउंड सीड येलो कॉटिलीडन, और पेरेंटल जो ट्रेट था वो कौन सा था? राउंड सीड येलो कॉटिलीडन, जो हमने पहले पेरेंट्स लिए थे जिनसे F1 की सेल्फिंग बाद F2 आया। और दूसरा ट्रेट था रिंकल सीड ग्रीन कॉटिलीडन। और हमने ये देखा कि रैंडम जो मूवमेंट हुई है गैमीट्स के अंदर जीन्स की, उसके कारण मिक्सिंग हुआ का। राउंड सीड ग्रीन कॉटिलीडन और रिंकल सीड येलो कॉटिलीडन भी आए हैं। अब एनालिसिस ऑफ दिस क्रॉस, देखिए मैं एक चार्ट बनाता हूं एनालिसिस के लिए F2 जनरेशन का, जिससे हमें रेशियोज का पता चलेगा। We will study this. The chart have the following parameters in it. The F2 ratios मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद आप यहां देखेंगे F2 ratios. In first column you have serial number, then we have phenotype, then we have phenotypic ratio, and then PR stand for phenotypic ratio, then we have genotype, and then genotypic ratio. PR stand for phenotypic ratio and the GR stand for genotypic ratio. So we will make a chart like this. Vertically we phenotypic ratio, genotype, genotypic ratio. मैं सीरियल नंबर 1, पहला फिनोटाइप आपके पास कौन सा देखिए? राउंड सीड येलो कॉटिलीडन। अब मैं आपको कुछ एक ट्रिक्स दूंगा बेटा। आई विल गिव यू सम ट्रिक्स फॉर द क्रॉस, हाउ टू एनालाइज दिस क्रॉस वेरी फास्ट। हम अभी कर देंगे चुटकियों के अंदर। पहला आपका जो जीनोटाइप है वो कौन सा है? देखिए वो है
राउंड सीड येलो कॉटिलीडन। अब आप ध्यान से सुनेंगे बेटा सभी, राउंड सीड येलो कॉटिलीडन के कितने मेंबर्स हैं फिनोटाइप के, वो देखना है। तो मैं आपको बता देता हूं क्रॉस पे कहां कहां होंगे। जहां जहां मैं इस चौक को ले जाऊंगा आपने वो देखना है। ऐसे देखो, मैं लाइन लगा देता हूं, आपने लाइन नहीं लगानी, पर आप ऐसा देखेंगे। मैं एक रफ व्हाइट कलर की लाइन आपको लगाता हूं जिससे आप इसको स्टडी कर पाए। लाइक दिस डायगोनल लाइन, और फिर इस लाइन को यहां ज्वाइन कर देंगे आप। जहां से शुरू किया था वहीं पे एंड हो गया। ओके, ऐसे फिर डायगोनली पहले क्यूब से इस लास्ट क्यूब में, फिर डायगोनली आए हम, फिर इनको जोड़ दिया। ये सारे के सारे राउंड सीड येलो कॉटिलीडन होंगे बेटा। कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा कहीं नहीं होंगे, मैं सब लगाता हूं आपसे। आप देख लीजिए पूरी क्रॉस को, इनके अलावा यहां 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 नहीं है। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाउ मेनी phenotypically the round seed yellow cotyledons are there, 9। आप तो पूरा लिखेंगे ना राउंड सीड येलो कॉटिलीडन्स, ठीक है। राउंड सीड येलो कॉटिलीडन्स आप लिखिए, मैं भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं। It is the first trait, round seed yellow cotyledons। क्लियर? और कितने मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स। थोड़ा गैप देके लिखेंगे अगला। अब इसके बाद हम इनके जीनोटाइप भी स्टडी करना आपको बताएंगे। दूसरा जो ट्रेट आता है वो कौन सा है, वो है इतना। तो हम ऐसे चलेंगे एक एक करके। फिर नया ट्रेट यहां आता है, इट इज राउंड सीड ग्रीन कॉटिलीडन। कौन सा है बेटा, आप देखें, इट इज round seed and रिसोर्सिस की तो बहुत कमी है लॉकडाउन में, इसलिए छोटे छोटे चौक भी यूज करेंगे बेटा। राउंड सीड है, और ऐसे भी हमें करने चाहिए चौक यूज। कोई भी रिसोर्स जो है हमें वो यूज, उसकी जो लास्ट लिमिट है तब तक उसको करना चाहिए, लेकिन रिन्यूएबल मैनर में। पर ये तो नॉन रिन्यूएबल है ना, हम इसको नहीं बना सकते। तो राउंड सीड ग्रीन कॉटिलीडन्स। ओके, सेकंड, हाउ मेनी आर देयर। मैं इसके ट्रिक आपको दे रहा हूं कि ये जो डायगोनल लाइन है, इसके एक इधर और एक इधर, 1 2 3, ओनली 3 आर देयर। क्लियर? सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 3। थर्ड ट्रेट बेटा, ये हो गया, ये हो गया, सभी हो गया, ये आ गया आपका। थर्ड ट्रेट जो है वो है कौन सी, रिंकल सीड एंड येलो कॉटिलीडन्स। रिंकल्ड सीड और येलो कॉटिलीडन्स। ओके, इट इज द थर्ड। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, तीसरी ट्रेट है, तीसरा फिनोटाइप है पॉसिबल। जो पॉसिबल तीसरा फिनोटाइप है, तीसरा है तो तीनों के तीनों इकट्ठे पाए जाते हैं। 1 1 2 3 इकट्ठे हैं, ऐसे याद रखना है हमने क्रॉस में, इकट्ठे होते हैं तीसरे। कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर्स आर देयर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर द फोर्थ वन, जो यूनिक है अपने आप में ही, और वो बिल्कुल पेरेंटल ट्रेट है, एंड इट इज wrinkle seed। It is wrinkled seed, दोनों रिसेसिव ट्रेट है बेटा, wrinkled seed एंड ग्रीन कॉटिलीडन्स बेटा, ग्रीन कॉटिलीडन्स, ये आपका फोर्थ ट्रेट है। हाउ मेनी आर देयर, इट इज सिंगल, ओनली वन। सो दिस इज वन। So the phenotypic ratio for the dihybrid cross is 9:3:3:1. 9:3:3:1. क्लियर है? अब हम जीनोटिपिक रेशियोज करेंगे। देखिए, मैं आपको दोबारा एक बार फिनोटाइप के लिए
ट्रिक्स देता हूं कि सबसे पहला जो आपका फिनोटाइप आएगा वो किसी भी क्रॉस में डायवर्ट में लीजिए, वो इसी एंगल में आएगा, इन्हीं वर्ब्स में, इन्हीं क्यूब्स में आएगा। फर्स्ट टू लास्ट पहली हॉरिजॉन्टल लाइन का मिलाइए, फिर उसको डायगोनली ले जाइए और फिर उनको मिला लीजिए। सेकंड जो ट्रेट आएगा वो डायगोनल लाइन के एक इधर और एक इधर, इसी में होगा। थर्ड ट्रेट तीनों इकट्ठे होते हैं और फोर्थ ट्रेट सिर्फ एक ही होता है। ये देखने वाली बात है इन क्रॉसेस में। अब जीनोटाइप की स्टडी करना चाहता हूं आपको, वेरी सिंपल। अब हमें पता है कि इसके जीनोटाइप ढूंढने हैं ना हमें, पहली फिनोटाइप के, तो हमें तो पता है कि पहला फिनोटाइप होता ही नहीं इसमें है, क्यूब्स में, पन्नेट स्क्वायर में। तो हमें मूव ही नहीं करना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है इनके केस में, हमें सिर्फ यहीं पे कंसंट्रेट करना है। और मैं जब इसको स्टडी करूंगा तो मैं इसको अब सीरियल नंबर दूंगा। मैंने पहला जीनोटाइप पढ़ना शुरू किया और मैंने सीरियल नंबर दिया 1। इट इज RRYY। तो मैं ऐसे करूंगा, यहां पे जीनोटाइप के लिए मैं यहां पे दूंगा सीरियल नंबर 1। और ये क्या है? इट इज RRYY बेटा। हाउ मेनी RRYY आर देयर? स्टडी फास्ट। RRYY ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस चारों पे, इस डायगोनल लाइन पे मैं आपको बता दूं अब अगला ट्रिक, R स्मॉल r Y स्मॉल y होगी इस लाइन पे, डायगोनल लाइन पे। तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं अभी, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। आप देख रहे हैं चारों डोमिनेंट एक में ही है, सो हम लिखेंगे यहां पे 1। अब मूव करेंगे एक एक करके। अब सेकंड पे आइए, इसको ये सेकंड फिनोटाइप है पॉसिबल जीनोटाइप। इट इज पहले 3 डोमिनेंट, लास्ट आपका रिसेसिव। तो मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड जीनोटाइप क्या है? RRY एंड स्मॉल y। लेट्स सी हाउ मेनी आर देयर। कितने हैं बेटा वो देखना है। पहले 3 कैपिटल वाले कितने देखते हैं? ये तो हो गया, ये पढ़ना है। इसमें नहीं है, इन पे तो होंगे नहीं, इसे ये भी नहीं है, ये है। आपने इसको भी सीरियल नंबर कितना देना है, क्योंकि हम जीनोटाइप का टाइप देख रहे हैं। ये भी सेकंड नंबर जीनोटाइप हो गया। और हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 1 एंड 2। तो आप लिख देंगे यहां पे 2। अब इसके बाद हमने यहां पे देखा था, यहां अब थर्ड जीनोटाइप यहां से है। ये अलग बात है कि यहां पे सेकंड है, हमने अब एक एक करके सीरियल नंबर में चलना है। यहां पे तीसरा जीनोटाइप बेटा आपके पास आएगा और अब आप यहां पे लिख देंगे 1 2 3 थर्ड जीनोटाइप। और वो क्या है? R स्मॉल r Y Y। इट इज R स्मॉल r एंड Y Y। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? लेट्स सी फॉर थर्ड। इस लाइन पे तो होने से रहे, यहां पे देखें आप एग्जैक्टली, हमें पता है कि यहीं पे होगा वो। देखिए 16 के 16 स्क्वायर पढ़ने की, 16 स्क्वायर पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं, आपने तो 9 पे ही कंसंट्रेट किया, इसलिए आपकी क्रॉस की एक्यूरेट होगी। और 1 एंड 2, हाउ मेनी आर देयर? इट मस्ट बी 2। नाउ कम द फोर्थ जीनोटाइप। इसके लिए मैंने आपको पहले ट्रिक दे रखा है कि इसी लाइन पे सारे के सारे होंगे। फोर्थ बिना सोचे समझे अगर आपकी क्रॉस सही है बेटा, अगर आपने ढंग से बनाई होगी, देन यू मस्ट हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। दीज आर 1 2 3 4। So the fourth genotype is, it is R, then small r and Y and small y. How many members are there? Let's see. 1 2 3 4. So these are 4. और देखें आप टोटल करके 4 2 और प्लस कर दिए, 2 प्लस किया 6, 2 प्लस किया 8 और 8 9 ही तो मेंबर थे, इसलिए ये काम हो गया। अब हमें सेकंड के जीनोटाइप देखने हैं, सेकंड फिनोटाइप के जीनोटाइप। तो ये सारा देखो हमने चेक कर लिया। यहां सेकंड ट्रेट तो यही इन 3 में है, यहीं पे कंसंट्रेट करना है, इसमें इसमें और इसमें, डायगोनल लाइन के इधर इधर और इधर करना है। तो आप देखेंगे इसको अब हम नंबर देंगे 5 नंबर जीनोटाइप, फिफ्थ जीनोटाइप इट इज, एंड इट इज RR स्मॉल y y। तो मैं नंबर दे रहा हूं जीनोटाइप नंबर 5th, इट इज RR एंड स्मॉल y। ठीक है जी। और आप देख सकते हैं कितने मेंबर है, 5th में ये है, इसमें नहीं है, यहां भी नहीं है।
तो आप देखिए एक ही हुआ, तो अभी तक आपके पास जो है वो कितने मेंबर्स हैं? इट इज 1। अब अगला जीनोटाइप देखते हैं। इसमें ये तो हो गया, यही चलेगा ना, तो इट इज द जीनोटाइप नंबर 6 बेटा। हमें इसको देखना है, इसको देखना है। आर स्मॉल वाई बोथ आर स्मॉल, तो इसको भी आप 6 नंबर दीजिए। और जो जीनोटाइप आपका 6 आता है वो कौन सा आ गया बेटा? इट इज, देखिए आप कौन सा है बेटा, देखो इट इज आर स्मॉल वाई आर स्मॉल वाई आ गया बेटा। और अब ये आपके पास कितने हैं मेंबर्स? 1 and 2। 6 जीनोटाइप के आपके पास कितने मेंबर्स हैं? 2 मेंबर्स यू हैव। देन अब हमें इन 3 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जो अगला फिनोटाइप है वो रिंकल सीड येलो कोटिलिडन है। तो आप अब इन पे देखिए, यहां तक पूरा हो चुका है पर्नेट स्टेट यहां पे। और जीनोटाइप नंबर कौन सा आएगा? 7 जीनोटाइप क्या है? स्मॉल आर वाई। आप 7 जीनोटाइप को देख पा रहे हैं। इट इज स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई रिंकल सीड येलो कोटिलिडन। तो आप देखिए इट इज स्मॉल आर एंड वाई। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? लेट्स सी। स्मॉल आर इसमें तो देखना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही है। तो 7 जीनोटाइप का बेटा आपके पास एक ही मेंबर होगा। क्लियर है? अब 8 जीनोटाइप आ गया बेटा आपका। क्रॉस ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रही है। 8 जीनोटाइप आपके पास है स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। तो लेट अस सी इट हियर। इट इज 8th जीनोटाइप इज कौन सा बेटा? यहां पे भी और यहां पे भी 8th जीनोटाइप पे देखेंगे आप। स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। तो इट इज स्मॉल आर एंड वाई स्मॉल वाई। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? यस, इट इज 2। अब ये 3 पूरे हो गए। अब जो लास्ट आपका ट्रेट है, जो जीनोटाइप आता है वो 9th जीनोटाइप है बेटा। 9 जीनोटाइप होते हैं, इसमें याद रखें आप। एंड इट इज द 9th जीनोटाइप एंड इट इज द only small y and it is having the single member 1। इसमें एक ही होता है वो 1। इस तरह से आपके पास फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज आ चुकी हैं। फिनोटिपिकली इट इज 9:3:3:1 रेशियो इन डाइवर्ट क्रॉस, और जीनोटिपिकली इट इज 1:2:4:1:2:1:2:1:1। याद रखने के लिए कैसे आप क्रॉस की रेशियो याद रखेंगे, मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं। इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे 12, 24, 1, 21, 21। कैसे पढ़ सकते हैं आप? 12, 24, ठीक है, 12, 24, 1, 21, 21। देखिए 12, 24, 1, 21, 21। आप इस तरह से इसको रेशियो को याद रख सकते हैं। 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1। ठीक है, ये इसकी जीनोटिपिक रेशियो है। मैं यहां लिख देता हूं, इट इज जीनोटिपिक रेशियो। कई बार नीट में पूछा जाता है, वहां पे पता कैसे लिख दिया जाता है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, वो क्लेवरली थोड़ा सा इसको करते हैं, और वो क्या लिखते हैं जीनोटिपिक रेशियो में, एक्टिव जीनोटिपिक रेशियो में 1:1:1:1:1:2। बीच में रेशियो लगेगा बेटा। 1:1:1:1:1 2:2:2 एंड 4। मैं आपको बोलूंगा, आप इस रेशियो को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। 1 4 बार आएगा, 2 4 बार आएंगे, और 4 1 बार आएगा। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है, पर ऐसे 12, 24, 1, 21, 21 से आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। मैंने आपको फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइवर्ट क्रॉस एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइवर्ट क्रॉस कराया, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और डाइवर्ट क्रॉस इज द क्रॉस, द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट विच डील विद द स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। वी हैव डिस्कस दिस। आपको करना क्या है बच्चों, आपको घर में कम से कम यू हैव टू राइट डाउन योर नोटबुक फॉर द 5 टाइम फॉर 5 days। अगर आप इस क्रॉस को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, मेक श्योर दैट यू मस्ट explain the full concept of direct cross or full cross for 5 times for 5 days।
4 times for 4 days, then 3 times for 3 days, 2 times for 2 days, then single time, and after that surely saying there is no need to write down. You people will have you are very fluent in this process, genetic process. So this is the diagonal cross we have, and this is the full concept of the diagonal cross. हाँ, मैं एक बार रिपीट कर दूं ट्रिक्स को कि अगर आपने जल्दी से क्रॉस को एनालाइज करना हो तो फर्स्ट जो आपका फिनोटाइप आएगा वो इस एंगल पे होगा जो मैंने बताया। सेकंड जो आपकी डायगोनल लाइन है उसके एक इधर। थर्ड यहां पे तीनों इकट्ठे होंगे, तीसरे नंबर के तीनों इकट्ठे हैं, फोर्थ एक ही होता है। बाकी मैंने जीनोटाइप आपको नंबरिंग से बताए, इसमें कहीं भी अब दिक्कत नहीं है। अब आपको जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो दिस शुड बी क्लियर। What it is a matter of practice. How much practice you will do, it will make you the perfect man. A man who do the practice, he can become perfect. और अगली क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे लॉ ऑफ इन्वेरिएंट असॉर्टमेंट पे और भी बातें जेनेटिक्स के ऊपर। तब तक के सबको करो नमस्कार।